کر رہے ہیں پاکستانی فوج کو, ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس گورنمنٹ کو, ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ہٹا دیں. آرٹیکل 6 لگتا ہے یہ غداری کا کیس ہے. پاکستان کی فوج میرے اوپر نہیں بیٹھی ہوئی, میری نیچے ہے. میں ایک پاکستان کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں. جو ہم 2 سالوں میں اس مشکل وقت سے پاکستان کو آج نکالا ہے, اگر پاکستانی فوج اور ادارے میرے ساتھ نہ کھڑے ہوتے, میں اکیلا کیا کر سکتا تھا؟ منتخب وزیر اعظم ہوں, فوج میرے ماتحت, دیگر ادارے بھی ساتھ کھڑے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پلنے والے جمہوری حکومت ہٹانے کے لیے فوج پر دباؤ ڈال رہے ہیں. ایسا کرنے والوں پر آرٹیکل 6 لگتا ہے. پی ڈی ایم کے بہت سے لوگ استعفے نہیں دیں گے. حکومت جب چاہے آئینی ترمیم کے بغیر اوپن بیلٹ پر سینٹ الیکشن کرا سکتی ہے. وزیر اعظم عمران خان. تیسا لوٹا, ان کے بچے آ گئے. اب بچوں کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے. یہ ایک اتنی بڑی فلاپ شو تھی, لاہور کے لوگ ہی نہیں نکلے. آپ ادھر ادھر سے سارے پاکستان سے جمع کر کے مدرسوں کے بچوں کو بھی وہ مولانا فضل الرحمان لا کے فوراً, میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ استعفے دیں, میں دعا کر رہا ہوں کہ استعفے دیں. بائی الیکشنز کیسے کروائیں گے؟ ممکن ہوگا یہ کروانا؟ آپ دیکھتے رہیں. میں اگر یہ استعفے دیں, میں آنیسٹلی آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان کی بہتری ہوگی. میں کہتا ہوں کہ اگر وہ لانگ مارچ کر دیں تو پتہ چل جائے گا کہ استعفیٰ مجھے دینا پڑے گا یا ان کو دینا پڑے گا. ہفتہ گزار گئے وہاں, میں تب ان سے واقعی پھر میں سوچنا شروع کر دوں گا استعفے کا. لاہور جلسے کی ناکامی کے بعد اپوزیشن مایوس. رہی صحیح کسر لانگ مارچ میں نکل جائے گی. یہ مارچ کریں تاکہ پتہ چلے کہ انہوں نے استعفے دینے ہیں یا میں نے. مخالفین ایک ہفتہ اسلام آباد میں ٹھہر گئے تو استعفیٰ دینے پر غور شروع کر دوں گا. وزیر اعظم نے مریم نواز اور بلاول بھٹو کو ناتجربہ کار بچے قرار دے دیا. Facts speak for themselves. I am not talking, یہ hypotheticals نہیں ہے, یہ مفروضے نہیں ہیں. میں مجھے بڑا افسوس ہے, یہ مفروضے نہیں ہیں. مجھے یہ بیچ میں آنا پڑتا ہے. نہیں, شاید صاحب ایسے نہیں. ندیم بابر صاحب, آپ پلیز جھوٹ بولنے سے کام نہیں بنے گا. ندیم بابر صاحب, مکمل کرنے کی گنجائش نہیں ہے. آپ کچھ سچ بولے تو مکمل ہو. ایل این جی کی خریداری کا معاملہ, شاہد خاقان عباسی اور ندیم بابر آمنے سامنے. معاون خصوصی سستی گیس خریدنے کے دعوے پر قائم. لیگی رہنما کا خزانے کو اربوں کا نقصان پہنچانے کا الزام. دنیا کامران خان کے ساتھ میں بڑا مناظرہ. کی حکومت میں ہی ایل این جی کو گیس کی بجائے پیٹرول ڈکلیئر کروایا گیا. پورے 5 سال ایک نیا بلاک ٹینڈر نہیں کیا ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کے لیے. جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, ان 27 مہینوں میں ہم نے جو ایڈیشنل پروکیور کی, اوسط تقریباً 20% کم آئی. ایک ٹرمینل اگلے مہینے کے اینڈ پہ کنسٹرکشن شروع کرنے والا ہے. دوسرا ٹرمینل جو ہے وہ 2021 کے سیکنڈ ہاف میں کنسٹرکشن شروع کرنے والا ہے. شاہد خاقان عباسی کی حکومت میں ایل این جی کو پیٹرول ڈکلیئر کرایا گیا. 10 مہینے ٹرمینل کی پوری ادائیگی کرتے رہے لیکن گیس نہ لائی جا سکی. سابق دور میں $8 MMBTUs کے حساب سے 18 کارگو آئے. ہم نے 23 کارگوز $6.34 کے حساب سے منگوائے ہیں. ندیم بابر کی گفتگو. پاور پلانٹس کی ڈیزل سے ایل این جی پر منتقلی گزشتہ حکومت کا اچھا کام قرار. جی آئی ڈی سی کے جمع ہونے والے پیسوں بھارے استفسار. دو ٹرمینل لگ گئے تھے, ان کے اندر 12 کارگوز 12 شپس منتھ کی کیپیسٹی ہے, اور تھوڑی سی تکلیف کریں تو 15 جہازوں کی کیپیسٹی آج ملک کے اندر پیدا کی جا سکتی ہے. نہ پائپ لائن بنی ہے نہ ٹرمینل بنے ہیں. یہ دنیا میں بیسٹ ڈیل تھی جو لانگ ٹرم تھی. $1 کا سالانہ فائدہ ہوگا. جی آئی ڈی سی کے سارے پیسے حکومت کے پاس. جو ایل این جی $4 کی آنا چاہیے تھی, انہوں نے $60 میں لی. ایک اور 2 سالہ معاہدے ہمیں بھی مل رہے تھے لیکن ہم نے بہترین کا انتظار کیا. قطر معاہدے سے پاکستان کو $400 ملین سالانہ فائدہ ہو رہا ہے. شاہد خاقان عباسی کا دعویٰ. India is planning a surgical strike against Pakistan. This is a serious development. I want to tell India very clearly that Pakistan is fully prepared
to respond and to defeat their designs, and we will respond effectively. भारत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की मंसूबाबंदी में मसरूफ, अंदरूनी हालात से तवज्जो हटाने के लिए दहशतगर्दी को हवा देने की कोशिशें भी जारी, साजिशों से मुकम्मल आगाह हैं। असली दुश्मन ने कोई जारहियत दिखाई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अबू धाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मकबूजा वादी की सूरत हाल और भारत में अक़लियतों से इम्तियाजी सलूक पर तशवीश का इजहार। Want the Indian political and military leadership to know that their mindset and sinister designs are well known to us. Our valiant armed forces stand ready to respond forcefully and effectively. In the interest of regional peace and stability, India would be well advised to desist from any misadventure. अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, इंट्रा अफगान मुज़ाकरात पायदार अमन और इस्तेहकाम का तारीखी मौका, पाकिस्तान मुस्तकिल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की ज़ेर क़यादत मिलने वाले वफ़द से गुफ्तगू। आर्मी चीफ का पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑपरेशनल बेस का दौरा, पाक चीन मुश्तरका मश्क शाहीन 9 का मुआयना, दोनों ममालिक के अफसरान और जवानों की भी सिपा सालार से मुलाकात, जंगी तैयारियों के लिए मुश्तरका तरबियती मशक़ें ज़रूरी हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा का बेस एहलकारों के अज़्म को भी खराज तहसीन। वक्त से पहले सेनेट इलेक्शन की तजवीज़, नून लीग ने अदालत जाने का ऐलान कर दिया। 11 फरवरी से पहले इंतखाबी शेड्यूल गैर आइनी, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन गैर कानूनी इक़दाम नहीं करेगा। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। सिंध असम्बली के हल्का PS 52 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन 18 जनवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी के अली मर्दान शाह के इंतकाल के बाइस खाली होने वाली नशिस्त पर अरबाब गुलाम और अमीर अली शाह उम्मीदवार। असली फनकार जो है वो घरों तक महदूद हो गए। जो सियासी अदाकार और फनकार थे उन्होंने सियासी थिएटर लगा लिया। हुकूमत जो है इनके दुखों का मुदावा भी करेगी, उनका भी जो दर्द है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। सियासी अदाकारी में बिलावल भुट्टो ने राजकुमारी और पनामा रानी को पीछे छोड़ दिया। असली फनकार घरों तक महदूद, सियासी अदाकारों ने थिएटर लगा लिए। बिलावल भुट्टो ने एक्टिंग में मरियम नवाज को भी पीछे छोड़ दिया। फिरदौस आशिक आवान की तनकीद, मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात की लाहौर में गुलकार शौकत अली के घर आमद, हुकूमत पंजाब की जानिब से 2 लाख रुपए का इमदादी चेक पेश। पंजाब हुकूमत का रवां माली साल के दौरान साहिवाल और डेरा गाजी खान डिवीजन के तमाम खानदानों को सेहत सहूलत कार्ड देने का फैसला। सूबाई वज़ीर सेहत की ज़ेर सदारत इजलास, तिब्बी सहूलतों की फराहमी का जायजा। दिसंबर 2021 तक सहूलत कार्ड का दायरा सूबे के तमाम डिवीजन्स तक फैला दिया जाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद का खिताब। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी भी कोरोना का शिकार। असद उमर ने टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद को करंटीना कर लिया, ट्वीट के जरिए तस्दीक। कोरोना की दूसरी लहर मजीद खतरनाक। 24 घंटे के दौरान मजीद 83 अफराद जाँ बहक, 2972 नए मरीज भी रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 4,51,494 अफराद वायरस से मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 42,478 तक पहुंच गई। सर्दी वो भी कड़ाके की। मुल्क के अक्सर इलाकों में शदीद ठंड। अस्तोर में पारा -12, स्कर्दू में -11 तक गिर गया। कल्लाक में दर्जा हरारत -6 और कोयटा में -5 रिकॉर्ड।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं जवेरिया ज़ैद और मैं हूं हुसैन अब्दुल सत्तार। हेडलाइंस आपने जानी, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आगाज में जिक्र करेंगे वजीर आज़म इमरान खान का, जिन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुंतखब वजीर आज़म हूँ, फौज मेरे मातहत है, दीगर तमाम इदारे भी हुकूमत के साथ खड़े हैं, मुखालिफिन जमहूरी हुकूमत हटाने के लिए फौज पर दबाव डाल रहे हैं। ये भी कहा कि पीडीएम के बहुत से लोग इस्तीफे नहीं देंगे। वजीर आज़म ने आज इंटरव्यू के दौरान कहा कि मुंतखब वजीर आज़म हूँ, फौज मेरे मातहत है, दीगर तमाम इदारे भी हुकूमत के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन जमहूरी हुकूमत हटाने के लिए फौज पर दबाव डाल रही हैं, पीडीएम के बहुत से लोग इस्तीफे नहीं देंगे। वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की गोद में पलने वाले जमहूरी हुकूमत हटाने के लिए फौज पर दबाव डाल रहे हैं, ऐसा करने वालों पर आर्टिकल 6 लगता है। उन्होंने कहा कि पीडीएम के बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस्तीफे नहीं देंगे। हुकूमत जब चाहे आईनी तरमीम के बगैर ओपन बैलेट पर सेनेट इलेक्शन करा सकती है। वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये वाजे कर दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लाहौर जलसे की नाकामी के बाद ऑपोजिशन जो है वो मायूस है, और लॉन्ग मार्च के हवाले से भी उन्होंने बात की कि रही सही कसर जो है वो लॉन्ग मार्च में निकल जाएगी। उन्होंने कहा कि ये मार्च करें ताकि पता चले कि इन्होंने इस्तीफे देने हैं या मैंने इस्तीफे देने हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि मुखालिफिन एक हफ्ता इस्लामाबाद में ठहर गए तो इस्तीफा देने पर गौर शुरू कर दूंगा। लोगों ने मुझे ये तो नहीं कहा था कि जिस दिन आप आएंगे एक स्विच ऑन करेंगे मुल्क ठीक हो जाएगा। लोगों को आप 5 साल की टर्म देते हैं कि 5 साल के बाद मैं ये करूंगा, तब जज करते हैं। दोनों के जिन्होंने 30 साल लूटा उनके बच्चे आ गए। अब बच्चों का कोई तजर्बा ही नहीं है, इन्होंने अभी से निकले थोड़े से, इन्होंने समझा कि इनके साथ बड़ी पब्लिक है। आज आपके सामने पेशेंट को ही कर रहा हूँ कि ये जो भी करेंगे नुकसान अब इन्हीं को होना है। ये एक इतनी बड़ी फ्लॉप शो थी पहले, और मुझे पता था आप कारकुनों को 500-500 रुपए दे के और कीमे के नान और बिरयानी दे के आप कभी मीनारे पाकिस्तान नहीं भर सकते। और के लोग ही नहीं निकले, आप इधर उधर से सारे पाकिस्तान से जमा कर के मदरसों के बच्चों को भी वो मौलाना फजल रहमान ला के, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि इस्तीफे दे, मैं दुआ कर रहा हूँ कि इस्तीफे दे। देखते रहें, मैं जो अगर ये इस्तीफे दें, मैं ऑनेस्टली आपको कहता हूं कि पाकिस्तान की बेहतरी होगी। मैं कहता हूं कि अगर वो लॉन्ग मार्च कर दें तो पता चल जाएगा कि इस्तीफा मुझे देना पड़ेगा या इनको देना पड़ेगा। हफ्ता गुजार गए वहां, मैं तब इनसे वाकई फिर मैं सोचना शुरू कर दूंगा इस्तीफे का। को पता है कि इमरान खान ने तो हिलना नहीं है। ये अपील कर रहे हैं पाकिस्तानी फौज को, उनको ये कह रहे हैं कि आप इस गवर्नमेंट को, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दें। आर्टिकल 6 लगता है ये गद्दारी का केस है। दूसरा ये कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं पाकिस्तानी फौज को, उनको ये कह रहे हैं कि आप इस गवर्नमेंट को, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दें। आर्टिकल 6 लगता है ये गद्दारी का केस है। पाकिस्तान की फौज मेरे ऊपर नहीं बैठी हुई, मेरी नीचे है। मैं एक पाकिस्तान का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूं। जो हम 2 सालों में इस मुश्किल वक्त से पाकिस्तान को आज निकाला है, अगर पाकिस्तानी फौज और अदारे मेरे साथ ना खड़े होते, मैं अकेला क्या कर सकता था? इस तरह करके किसी आर्मी चीफ को अटैक करना जी, फौज के अंदर एक रिएक्शन आता है। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था, गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त जी, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। देखें अब क्या करें, एक आदमी धोखा देता है। पहले तो खैर एनआरओ साइन करके चला गया था मुशर्रफ के साथ सऊदी अरेबिया, वो भी झूठ बोलता रहा कि मैंने कोई साइन नहीं किया। वो बारी ऐसा एक्टिंग की है कि वो बॉलीवुड में भी मेरे ख्याल में ऑस्कर मिल जाता वो एक्टिंग का।